نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 22 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ نواز شریف کی نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواست بھی مسترد۔ نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع۔ نواز شریف ہائی رسک کیٹیگری کے مریض ہیں۔ دل کے علاج کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کو بہترین علاج کے لیے لندن میں ہی قیام کرنا چاہیے۔ میڈیکل تھراپی اور معمول کی چہل قدمی جاری رکھیں۔ نواز شریف صحت یاب ہو کر آئیں گے اور عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں مستند ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کی جان ابھی تک خطرے میں اور علاج کی ضرورت ہے۔ ادھر شبلی فراز کا کہنا ہے یہ جب اقتدار میں نہ ہوں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اثاثے بھی باہر رکھتے ہیں۔ شہباز گل نے کہا میاں صاحب کی رپورٹس ٹھیک نہیں آتی، تصویریں آتی رہتی ہیں۔ موٹر وے زیادتی کیس متاثرہ خاتون نے ملزم عابد اور شفقت کی شناخت کر لی۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون نے دونوں کی پھانسی کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی ملزم عابد ملی چھٹے روز بھی گرفتار نہ ہوا۔ ڈکیت گینگ کا تیسرا رکن اقبال عرف بالا مستری پکڑا گیا۔ ملزم شفقت عدالت میں پیشی کے بعد شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ ریمانڈ پر جیل منتقل۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو کیس کی رپورٹ پیش کر دی۔ وزیر اعظم بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل پر سخت قانون لائیں، بھرپور حمایت کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں دوسری جماعتوں کو بھی قانون منظور کرنے کے لیے قائل کریں گے۔ مزید بولے شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر میں موٹر وے کی تعمیر میں کریڈٹ لیا لیکن جرم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ زیادتی کے واقعے پر بات کرتے ہوئے موٹر وے بنانے کا کریڈٹ لینا شہباز شریف کو مہنگا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر کے خلاف سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان۔ شہباز گل اور شیریں مزاری کی بھی تنقید۔ نون لیگ نے وضاحت میں کہا بیان کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے موٹر وے پر نظام نہ ہونے اور بد انتظامی کی نشاندہی کی تھی۔ دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کا حق دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سینیٹ الیکشن کے لیے خفیہ رائے شماری ختم کرنے کی آئینی ترمیم لانے کی بھی منظوری۔ ای سی سی کے 2 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق۔ مشکوک پائلٹس کے لائسنس منسوخ۔ خصوصی عدالت میں ججوں کی تعیناتی کی منظوری۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں گرین بیلٹ پر ماڈل جیل بنانے سے روک دیا۔ لاہور میں موٹر وے پر اوورسیز پاکستانی خاتون سے زیادتی، لندن میں مقیم پاکستانیوں کا سخت غم و غصے کا اظہار۔ سی سی پی او لاہور کو فوراً نوکری سے برطرف کیا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کا مطالبہ۔ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کو کورونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا۔ پورے یورپی خطے میں کورونا وبا ایک بار پھر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں 6 سے زائد افراد کا ایک جگہ اکٹھا ہونے پر پابندی عائد۔ حکومت پاکستان کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا اجرا، اوورسیز پاکستانیوں کا مثبت رد عمل کا اظہار۔ وطن عزیز میں اپنوں کو رقوم کی ترسیل کا عمل آسان بنانے پر وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں سالانہ کرکٹ میلے کا 18 ستمبر سے آغاز۔ 8 ممالک کی ٹیمز شرکت کریں گی۔ ٹیمز کی رنگا رنگ کرکٹ کٹس اور ٹرافی کی تقریب رونمائی میں منتظمین اور کھلاڑیوں کی شرکت۔ اور برطانیہ بھر میں گرمی کی لہر، شہری ساحل سمندر اور دیگر تفریحی مقامات کا رخ کرنے پر مجبور۔ پارک شہریوں سے بھر گئے۔
पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम ने भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पाकिस्तान के नए नक्शे पर भारतीय एतराज़ मुस्तरद। इसराइल के यूएई और बहरीन से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज व्हाइट हाउस में होगी। अमरीकी सदर, इसराइली वज़ीर आज़म, अरब अमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। उधर फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने अरब लीग से ताल्लुक़ ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पेट्रोल सस्ता होने की नवीद दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कराची में केडीए के 2 अफसर कत्ल हो गए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर शामिल करेंगे। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुतासिरा खातून ने मुलजिम आबिद और शफकत की शनाख्त कर ली। ज़राए के मुताबिक मुतासिरा खातून ने दोनों मुलजिमों को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शम्स नवीद भट्टी से। शम्स, कहिएगा, शनाख्त परेड के हवाले से अब तक इत्तलात के सामने हैं? जी बिल्कुल, मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए का कहना है कि मुतासिरा खातून ने मुलजिम आबिद और शफकत की शनाख्त कर ली है कि यही दोनों ज्यादती करने में मुलव्विस थी। ज़राए का कहना है कि मुतासिरा खातून ने दोनों की फांसी का मुतालिबा भी किया है। पुलिस ने मुतासिरा खातून को दोनों मुलजिमान की तस्वीरें भेजी थी जिस पर इसने शनाख्त की। पुलिस ने गुज़श्ता रोज शफकत को गिरफ्तार कर लिया था जिसको आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम शफकत को 14 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया है, जबकि मुलजिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहाल आबिद मलिक पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है, जबकि पुलिस ने आबिद के अहले खाना को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने इससे कबल आबिद मलिक के गैंग में काम करने वाले इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। जी, पुलिस ने आबिद मलिक के साथियों को भी गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया शम्स नवीद भट्टी। नाज़रीन, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मली छठे रोज भी गिरफ्तार न हुआ। डकैत गैंग कारकुन इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री पकड़ा जा चुका है। मुलजिम शफकत को अदालत में पेशी के बाद शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मोटरवे इज्तमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। FIR में दहशत गर्दी की दफात शामिल कर ली गयी। घनौने फेल का एतराफ करने वाले मुलजिम शफकत को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। दरिंदे शफकत को सख्त सिक्योरिटी में पहले सेशन कोर्ट फिर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में लाया गया। दूसरी तरफ मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक छलावा बन गया। 6 रोज बाद भी हाथ ना आ सका। पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद दरिंदे को ना पकड़ सकी। IG पंजाब ने मुलजिम आबिद की जल्द गिरफ्तारी के अज़म का इजहार किया है। मुलजिम आबिद मली और शफकत का तीसरा साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी पकड़ा गया। मुलजिम ने आबिद के साथ मिलकर कई वारदातें की। मोटरवे वाक़ये की रात भी साथ था मगर रास्ते से ही वापस चला गया था। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की रेप के मुजरिमों को निशाने इबरत बनाने की हिमार। कौम भी वज़ीर आज़म की हम आवाज़ हो गई। केमिकल कैस्ट्रेशन फॉर रेपिस्ट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म की हामी, मुतादिद लोगों ने मुखालिफत भी की। रिपोर्ट देखिए। रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं उनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के 92 न्यूज़ को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को निशाने इबरत बनाने के लिए सर्जरी की मदद से नामर्द बनाने की तजवीज़ दे दी। इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं। मेरे ख्याल में तो इनको
चौक पे लटकाना चाहिए। जो मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस तजवीज़ पर सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद भी उनकी हम आवाज हो गई। केमिकल कैस्ट्रेशन फॉर रेपिस्ट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अनमोल नामी सारिफ ने इसे अच्छा फैसला करार दिया तो बासित और खिजर ने लिखा कि ऐसे ही फैसलों की वजह से उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। ऐसे लोगों को फौरन मौके पर सजा देनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसी सजा होनी चाहिए, बिल्कुल उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि कोई भी आइंदा से ऐसा कोई गुनाह न करे। इस तरह के दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए और निशाने इबरत बनाया जाए। रबिया नामी सारिफ ने लिखा कि इमरान खान ने पहले दुनिया को कोरोना से बचाव का तरीका बताया, अब रेप के तदारुक का आइडिया दे रहे हैं। सुबहान ने इसे महफूज मुस्तकबिल की जानिब कदम करार देते हुए कहा कि अब मुआशरे को इस हवाले से आगही भी देना होगी। अजहर के मुताबिक इंडोनेशिया, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन और अमरीकी रियासत अलबामा में पहले से ही ये सजाएं दी जा रही हैं। इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि जैसे मर्डर को आप फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह इन चीज़ों को भी लेके इसी तरह चलना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सख्त सजा होनी चाहिए, सरेआम फांसी। सारी उम्र के लिए जो है ना सर्जिकल नकारा बना देना चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बने। उसको सजाए मौत दी जाए लेकिन सरेआम दी जाए ताकि मुआशरे को मालूम हो और लोगों को पता चले कि दाग बैठ जाए, आइंदा हमने ऐसा जुर्म नहीं करना। सरेआम सूली पे लटका देना चाहिए। इन लोगों की वजह से अगर आज इनको रिलीफ मिल जाता है तो ये काम हर सिटी में होगा। सानिया मोटरवे के मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने इस तजवीज़ पर खदशात का इजहार करते हुए इससे इख्तलाफ भी किया है। दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जहां बच्चों और खवातीन से जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को कीमियाई अमल या सर्जरी के जरिए नामर्द बनाया जाता है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को कीमियाई तरीके या सर्जरी के जरिए नामर्द करने का ऐलान किया है और इसके लिए कानून भी मंजूर कराया जाएगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में ये सजा नाफजुल अमल है। अमेरिकी रियासतों कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, आयोवा, लुजियाना, मोंटाना, टेक्सास, ओरेगन, विस्कंसन और अलाबामा में जिनसी जराम में मुलव्विस मुजरिमों को कीमियाई इख्तिकारी की सजा दी जाती है। इंडोनेशिया में 2016, चेक रिपब्लिक में 1966, यूक्रेन में 2019 से इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। पुर्तगाल 2008, पोलैंड 2010, मालदोवा और एस्टोनिया में 2012 से इस कानून पर अमल हो रहा है। बरतानिया में 30 अप्रैल 2010 को जिनसी ज़्यादती के मुजरिम को कीमियाई इख्तिकारी के अमल से गुजारा गया। जनूबी कोरिया और रूस में 2011 से इस कानून के तहत मुजरिमों को सजा दी जाती है। जर्मनी, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और कोरिया में भी कई दहाइयों से जिनसी जराम में मुलव्विस अफराद को नामर्द करने की सजा राइज है। और अल अजीजिया रेफरेंस अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट। अल अजीजिया रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 22 सितंबर को पेश करने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसलसल अदम हाजिरी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिसके बाद नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना और नुमाइंदे के जरिए अपीलों की पैरवी करने की दरखास्तें भी मुस्तरद करते हुए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब लीगी रहनुमाओं ने कहा है कि नवाज शरीफ सेहतियाबी के बाद वतन वापस आएंगे और अदालतों का सामना करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक बनाया गया। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की किरदार कुशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शाहिद खान अब्बासी बोले कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। कि जो मुस्तनद डॉक्टरों की रिपोर्ट है
وہ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، اور اس علاج کا ایک وقت کا تعین کیا جا چکا ہے۔ جو تاخیر ہوئی وہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر جو بھی ملک کا قانون ہے، جو بھی حقائق ہیں، وہ اپنا راستہ لیں گے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو ان کی اپیلیں ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ آج بھی جو فیصلہ آیا ہے میاں نواز شریف 100% اس کی تعمیل کرنے پہ تیار ہیں۔ ان کو آج سے چند ماہ قبل جو ہے عدالت عالیہ نے رخصت دی اور ان کو باہر جانے کی اجازت ملی۔ فیڈرل حکومت اور پروونشل گورنمنٹ نے دونوں نے ڈاکٹروں کے ذریعے، میڈیکل بورڈز کے ذریعے اور سرکاری ہسپتالوں کے ذریعے ان کی بیماری کی تشخیص کو ویریفائی کیا۔ آج نواز شریف صاحب کے وکیل نے جنرل پرویز مشرف کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف جو مفرور تھے، انہیں سزا ہوئی تھی، کیپٹل پنشمنٹ ہوئی، اور دوران مفروری ان کی اپیل بھی ایڈمٹ ہوئی، اس اپیل کے اوپر سماعت بھی ہوئی، اور انہیں مفروری کے دوران ہی اس لاہور ہائی کورٹ سے اس سزا سے بری الذمہ بھی کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف سے متعلق عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، جب اقتدار میں نہ ہو تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، انہوں نے اثاثے بھی باہر بنا رکھے ہیں۔ مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نواز شریف کا جی تو فیصلہ آپ نے سن لی ہے، تو اب ان کو اگر تھوڑا سا بھی قانون کی پاسداری اگر ان کو ہے، یہ لوگ جو ہے نا یہ جیل میں یہ رہ نہیں سکتے ہیں، کام ان کے جیل میں رہنے والے ہیں، اور ان کا جو پھر جب آتا ہے عمل تو کم از کم اس میں پھر یہ بالکل صفر ہیں، یہ پھر بھاگنے کی کرتے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی سخت اس میں وہ چھوڑ گئے ہیں، اقتدار میں جب ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، ان کے اثاثے باہر ہوتے ہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کے اثاثے بھی باہر ہوتے ہیں اور وہ خود بھی باہر ہوتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ نئے پاکستان کو مشکلات سے جوڑ رہے ہیں۔ ملک میں واقعی مہنگائی ہوئی ہے اور برے حالات ہیں۔ سابق حکمرانوں کی ترجیح پیسہ بنانا تھا۔ ماضی کے حکمران ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کر چلے گئے۔ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے کہ اقتدار میں آئے، شوگر ملز لگا لیں، پیسہ بنایا، لندن میں بڑے گھر لے لیے، لیکن ایسا انسان بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان، تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے، برے حالات ہیں، وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں، کدھر ہے نیا پاکستان۔ ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں، اس کو قرضے دینے ہوں، اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے، قرضے لے ملک چلانے کے لیے، تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے، خرچے کم کرتا ہے، تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا۔ یہ تو دنیا کی تاریخ ہے۔ تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں، کشتیاں جلا کے جاتے ہیں، مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں، پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، وہ تب طاقت نکلتی ہے۔ ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، سوچ یہ ہوتی جی پاور میں آئے، اپنی شوگر ملز لگا لی، فیکٹریاں لگائیں، پیسہ بنائے، لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے، ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے، اور وہ پھر ہم اتنے ہی انسان رہ جاتے ہیں۔ مزید خبریں بھی ہوگی ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ لاہور
لاہور میں موٹر وے پر اوورسیز پاکستانی خاتون سے زیادتی کے واقعے پر لندن میں مقیم پاکستانیوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ سی سی پی او لاہور کو فوراً نوکری سے برطرف کیا جائے اور اصل ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو بہت دکھ ہوا ہے، ان کے سر شرم سے نیچے ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ بہت خطرناک قسم کا ہوا ہے، اس طرح کا پہلے واقعہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ تو مجھے تو سب سے زیادہ افسوس ان بچوں سے ہو رہا ہے کہ وہ ساری عمر یہ کیا فیل کریں گے کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسپیشلی اسٹیٹ کی پولیس کی اسٹیٹمنٹ آنا کہ جی یہ بچی باہر کیوں گئی ہے، یہ بہت مایوس کن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ سیریس ایکشن لیا جائے اور ہمارے جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ پولیس والے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کیوں نکل رہی تھی رات کے وقت، یہ کون سا سوال ہے؟ یہ کیوں ایسا سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کسی اگر وہ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ تو 12 کے بعد اس کا کوئی یعنی کہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کیوں نکلی باہر، 12 بجے ہو 1 بجے ہو، لیکن یہ دیکھیں ہماری حفاظت ہونی چاہیے۔ زیادتی کی بہت مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو سی سی پی او ہیں انہوں نے جو معافی کی جو درخواست کی ہے یا جو طلب کی ہے یہ ناکافی ہے۔ ایسے کہ گھر کا اگر چوکیدار کہے کہ جی کہ مجھے معاف کر دیں، ان کو چاہیے کہ ریزائن دینا چاہیے۔ میں تو ہم لوگ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریزائن دینا چاہیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی آسٹرازینیکا کے تعاون سے تیار کردہ کرونا وائرس کی ویکسین کے ایک مریض پر منفی اثرات ظاہر ہوئے تھے، جس کے بعد ویکسین کے ٹرائل کو روک دیا گیا تھا۔ ویکسین کا ٹرائل اب دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ آسٹرازینیکا کا کہنا ہے کہ تجربات یہ جاننے کے لیے روکے گئے تھے کہ مریض پر ظاہر ہونے والے منفی اثرات کا تعلق ویکسین سے ہے یا نہیں۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکوک کا کہنا ہے کہ ٹرائل میں وقفے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم ہمیشہ تحفظ کو اولویت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مرض کی ویکسین جلد از جلد لانے کے حوالے سے اپنے سائنسدانوں کی حمایت کرتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا تھا کہ اس طرح کے بڑے پیمانے کے ٹرائلز میں بعض لوگوں کے بیمار ہو جانے کی توقع رہتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ سیفٹی ریویو کمیٹی اور یو کے ریگولیٹر اور میڈیسنز اینڈ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری ایجنسی کی سفارشات کے بعد کورونا ویکسین کے ٹرائلز کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ٹرائل کے دوران بیمار پڑ جانے والے مریض کی بیماری کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا گیا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ برطانیہ میں ایک رضاکار جن شکایت کی وجہ سے بیمار پڑا تھا اس کے نتیجے میں ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو سکتی ہے اور وائرل انفیکشن بھی پھیل سکتا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں کم و بیش 180 مریضوں پر کلینکل ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں۔ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ویکسین تجربات کے پہلے اور دوسرے مرحلے سے گزرنے کے بعد اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرونا میڈیسن تمام تجرباتی مراحل سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے مارکیٹ میں آئے گی۔ اس ویکسین کے تجربات میں امریکہ، برطانیہ، برازیل اور جنوبی افریقہ کے 30,000 سے زائد رضاکار شریک ہیں۔ تیسرے مرحلے کے تجربات میں بھی ہزاروں افراد حصہ لے رہے ہیں۔ غلام حسین آوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کا کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپین اس مہلک وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ پورے یورپی خطے میں کرونا وبا میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں آج سے 6 افراد سے زائد افراد کے ایک جگہ اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وبا پھر سے سر اٹھانے لگی۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی نئے کیسز میں اضافہ۔ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کو کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت یورپی ملک اسپین سب سے زیادہ کرونا وائرس کی دوسری لہر سے متاثر ہے، جبکہ برطانیہ میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ یہ اضافہ پورے یورپی خطے میں کرونا وبا میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں آج سے 6 افراد سے زائد افراد کے ایک جگہ اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عوام کو ایک فون نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ 6 افراد سے زائد اجتماع دیکھیں تو پولیس کو اطلاع کریں۔ کرونا وائرس کی نئی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔
यूरोपीय मुल्क स्पेन के इलाके मालागा में कुछ वक्त के वक्फे से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते स्पेन में 53,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली और बेल्जियम भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुतासिर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,56,58,560 तक जा पहुंची है। इस मूजी वायरस से हलाकतें 8,55,181 हो गयीं, जबकि बरतानिया में भी मुसलसल केसों में इजाफे की वजह से हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो रहा है। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से पार्टी ओहदेदारान और दीगर जमातों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का 6 निकाती एजेंडा भी पेश किया गया, जिसकी शुरका ने मुकम्मल हिमायत की। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इजलास में कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए मुस्तफ़ा कमाल का 6 निकाती एजेंडा पेश किया गया, जिसकी शुरका ने मुकम्मल हमायत की और करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया गया कि कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए, सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों को बढ़ाया जाए और 18वीं तरमीम के समरात यूनियन कौंसिल तक पहुँचाए जाएँ। PSP बरतानिया के सदर चौधरी अल्ताफ शाहिद, फैसल मिर्जा, गुलाम नबी आमिर, जुबैदा खानम और दीगर ने इजहार ख्याल किया। आज जो इजलास हुआ उसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग थे, बल्कि ओवरसीज दीगर पाकिस्तानी भी मौजूद थे, जिन्होंने ये फैसला किया और एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की कि जो मुस्तफ़ा कमाल ने 6 नुकाती प्लान दिया है उसको मंजूर किया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया गया कि वो उनके जो मुस्तफ़ा कमाल ने 6 नुकात दिए हैं उनकी रोशनी में वो मसाइल वो चीज़ें हल की जाए। माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं, लोकल कम्युनिटी से भी हैं, लोकल काउंसलर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, उनसे डिस्कशन हुई है। तो एंड ऑफ डे यही है कि सूबाई हुकूमत जो काम कर रही है कराची में वो बात वही है कि जब तक इसके अंदर कोई ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे जिनका एक्सपीरियंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी भी इनको इमदाद दी जाए वो एक अच्छे तरीके से आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर खर्च की जा सकती है। इजलास में कराची के शहरियों के लिए एहतियात भी जमा किए गए। शुरका ने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रही है कि आबाई वतन के बासियों की मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार अदा करते रहें। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट के इजरा पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना है कि वतन अजीज़ में अपनों को रकूम की तरसील का अमल आसान बनाने पर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। तफसीलात खालिद वारसी की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की देरीना फरमाइश पर इस मंसूबे को मावन खसूसी जुल्फी बुखारी और वजारत ओवरसीज ने हतमी शक्ल दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्क के 8 बड़े बैंक के ताउन से मंसूबा शुरू करेगा, जिसके जरिए दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी आसानी और बाहिफाजत तरीके से वतन में मौजूद अपने प्यारों को रकूम भेज सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सबसे कीमती असासा है, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वाले सहूलत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि तारकीन वतन और इनके खानदानों को सहूलत फराहम करना हुकूमती तरजीह है। रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार करते हुए मुस्बत रद्द अमल दिया है। ग्लासगो में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि इस मंसूबे के जरिए वो बरतानिया या किसी भी मुल्क में अपनी रकूम बआसानी पाकिस्तान भेज सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये एक बेहतरीन और मुफीद फैसला है। खबर सुनी है कि पाकिस्तान ने एक डिजिटल अकाउंट खोलने का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इकदाम है। यहाँ पे हम लोगों को ये काफी अर्से से प्रॉब्लम चली आ रही थी और इससे मुल्क को भी फायदा और यहाँ के अवाम को भी फायदा है। मुल्क को ज़र मुबादला जाएगा और यहाँ के अवाम जो है वो इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। किसी भी वक्त यहाँ पे आप पैसे जमा कराएं, वहाँ से विड्रॉ हो सकते हैं और इससे मुल्क को बहुत बड़ा फायदा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फायदा है, जिसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, जिसमें अगर आप इधर से अकाउंट यूज करेंगे तो उधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपने अपने मुल्क से बैठ कर ही ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं और ये ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट कहते हैं कि खुलने के बाद 48 आवर्स में चालू हो जाता है। अब इस 48 आवर्स के बाद अकाउंट इज ऑपरेशनल। इसके फायदे क्या है कि आप यहाँ बैठे हुए वहाँ कोई भी पेमेंट करनी हो आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कर सकते हैं। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को वतन अजीज में अपनी रकूम और दीगर तरसीलात भेजने में हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है। कभी हुंडी तो कभी गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स का सहारा लिया जाता रहा है, जिससे न सिर्फ मुल्की ज़र मुबादला मुतासिर होता था बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की रकूम भी गैर महफूज रहती थी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइल और अरब ममालिक सिफारती ताल्लुकात में गैर मामूली तब्दीली का दिन। आज यूएई, बहरीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत व्हाइट हाउस में होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में तकरीब का इनेकाद होगा, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म, अमाराती और बहरीनी वज़राए ख़ारिजा तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान सफारती रवाबित कायम करने का तारीखी दिन आ गया। 1967 में इसराइल के साथ कभी ताल्लुकात कायम न करने का अहद करने वाले मजीद 2 अरब ममालिक आज अपना असूली मौक़िफ़ बदलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन आज से होनी रियासत के साथ व्हाइट हाउस में अमन मुआहिदा करेंगे और मिस्र और उर्दन के हम कदम होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में होने वाले मुआहिदे की इस तकरीब में इसराइल की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद और बहरीन की नुमाइंदगी भी उसके वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़्ज़ानी करेंगे। अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात से फ़लस्तीनियों के हुकूक और अलग रियासत की जिदोजहद मुतासर नहीं होगी। ये मुआहिदा मशरक़ वस्ता की तरक्की के लिए अहम पेशरफ्त साबित होगा। अमारात से समझौते को अमन मुआहिदा और बहरीन से ताल्लुकात को अमन का एलामिया करार दिया जाएगा। तकरीब में शिरकत के लिए रहनुमा वाशिंगटन पहुँचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के नौमुंतखब सदर तारिक जावेद और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी को फाल करने के लिए कारकुनान और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें की। जर्मनी से मिर्जा रोहेल बेग की ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर मुंतखब होने वाले तारिक जवेद ने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी माया हैदर के हमरा हैम्बर्ग और हैनोवर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें की। पीटीआई जर्मनी के सदर तारिक जवेद ने कहा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। उन्होंने जर्मनी के साथ जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी, IT समेत दीगर शोबों में अफरादी कुव्वत की फराहमी पर हुकाम बाला से बातचीत करने का यकीन भी दिलाया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी तारिक जवेद ने कहा कि उनकी कोशिश है कि आने वाली नस्लों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। मुलाकातों के दौरान तारकीन वतन के मसाइल, पानी के मंसूबे, बिजली के पैदावारी मंसूबे, तलबा के मसाइल, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स खोलने समेत कई अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। तारिक जवेद ने कहा कि वो PTI को जर्मनी में मुनज़्ज़म करने और मुख्तलिफ धड़ों को खत्म करके एक मुनज़्ज़म पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी माया हैदर ने इस मौके पर कहा कि वो चाहती हैं कि जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन भी आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और पार्टी कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के सदर तारिक जवेद को अपने मसाइल से आगाह किया। सदर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को उनके मसाइल जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, जर्मनी। आयरलैंड के दारुल डबलिन में सालाना क्रिकेट मेला 18 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 8 ममालिक की टीम्स शिरकत करेंगी। टीम्स की रंगारंग क्रिकेट किट्स और ट्रॉफी की तकरीब रूनमाई हुई, जिसमें टूर्नामेंट के इंतजामिया और खिलाड़ी शरीक हुए। मजीद जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डबलिन में 8 ममालिक की टीमें 18 सितंबर से शुरू होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी की रोनमाई के साथ साथ तमाम टीमों की क्रिकेट किट्स की भी रोनमाई कर दी गई है। तकरीब रोनमाई के मेहमान खसूसी मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बेरी एंड्रयूज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तरह आयरलैंड में भी आवाम को खेलों जैसी सरगर्मियों से दूर कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल हो रहे हैं और इस क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से खेलों के मैदान दोबारा से बारोनक होंगे। I'm here tonight to mark the launch of the cricket tournament, which will start on the 18th for 3 days in September. And it will bring together 8 teams, and it's just a fabulous opportunity to bring communities together after the very tough few months that all of us have experienced. And as we know, sport transcends communities, it transcends age groups, and it has an ability to bring people together. So I'm delighted to be here to launch it with Amar Ali, my friend, and the community here in Barbecue tonight. I really hope that you will be able to attend it. I think there's so many great companies that have supported it. ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 17, 18 ਤੇ 19 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ होप करते हैं कि सारे उत्थे टूर्नामेंट दे विच आउणगे होम आके जी। ये एक तरीका है कम्युनिटी में जो वापस ये जो कोविड के बाद जो स्ट्रेस था
तो इंटरटेनमेंट लाने का, और हम मेक श्योर करेंगे इस टूर्नामेंट में सारी गाइडेंस जो गवर्नमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट से दी है उनको फॉलो करते हुए इसको अच्छी तरीके से कंडक्ट करें विद ऑल एस्पेक्ट्स। मैं सबसे पहले तो अमार का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने दोबारा क्रिकेट को आयरलैंड में कोरोना के पैराडेमिक टाइम में बड़ा हार्ड टाइम था कम्युनिटी के लिए और सब लोगों के लिए, तो उसमें दोबारा जो है ना ये खेल के मैदान को आबाद करने जा रहे हैं और क्रिकेट में जो है ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आयरलैंड में हम काफ़ी देर से ये एक क्रिकेट इवेंट आ रहा था, उसका इंतज़ार कर रहे थे और कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन थी, लेकिन अब इंशाल्लाह इसको हम करेंगे और एशियन टाइगर को सपोर्ट कर रहे हैं। 8 ममालिक की टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 10 ओवर्स पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट 3 रोज तक जारी रहेगा और मैचेस के लिए एडम्स टाउन, ट्रेलिस टाउन, डबलिन ग्राउंड्स का इंतखाब किया गया है। आयरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और खास तौर पर नौजवान इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने और इसे देखने के लिए काफी पुरजोश हैं। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी भी दिल खोलकर क्रिकेट टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए मैनेजमेंट का भरपूर साथ दे रहे हैं। ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि आयरलैंड में स्पोर्ट्स का जो दौर है वो वापस आ रहा है और क्रिकेट के ज़रिए एक ये जो टूर्नामेंट किया जा रहा है, आज उसकी तकरीबन रोनुमाई की गई है ट्रॉफ़ी की, और उम्मीद की जाती है कि ये टूर्नामेंट बड़े अच्छे अंदाज में होगा और इसमें जो कोविड की जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उसको फॉलो किया जाएगा और जो शायकीन है इस मैच को, इस टूर्नामेंट को यहाँ आयरलैंड में देख के, डबलिन में देख के महसूस होंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। बरतानिया भर में गर्मी की लहर ने शहरियों को साहिल समंदर और तफरीही मकामात का रुख करने पर मजबूर कर दिया। पार्क्स शहरियों से भर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2016 के बाद ये तवील तरीन सितंबर था जिसमें इंतहाई ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी इंग्लैंड में मौसम गर्मा जाते जाते फिर वापस लौट आया। गर्मी की शदीद लहर ने जहां शहरियों को परेशान किया, वहीं मौसम का लुत्फ उठाने वालों ने साहिल समंदर तफरी पार्कों का रुख कर लिया। साहिल समंदर पर शहरियों का रश दिखाई दिया, जहां लोग मछलियां पकड़कर अपना वक्त गुजारते रहे। साहिल समंदर पर नहाने वालों ने खूब गौते लगाकर गर्मी को भगाने की कोशिश की। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर इस हफ्ते तक जारी रहेगी। 2016 के बाद ये गर्म और तवील तरीन सितंबर था। आमतौर पर साल के इन दिनों में मौसम खुशगवार होता है। गुज़श्ता रोज लंदन में दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिससे शहरी पसीने से शराबूर दिखाई दिए। एक तरफ मौसम ने अपनी गर्मी दिखाना शुरू कर दी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने शहरियों पर कोरोना के हवाले से सख्त पाबंदियों का फिर से नफाज शुरू कर दिया है। सैर सपाटे के लिए बाहर जाने वाले शहरी एक बार फिर घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।